Hi, today I am going to talk about T-line shorthand. As you can see on screen, generally you have heard Gregg shorthand, Pitman shorthand, but here I will talk about this shorthand named T-line. This T-line shorthand is based on spellings. This shorthand can be learned only in English language. You can't learn in Hindi language. So I have written here, यह आशुलिपि केवल अंग्रेजी भाषा में सीखी जा सकती है. ठीक है. Okay. So this shorthand I have learned this shorthand from online classes. You can see the website. From this website I have learned, and I felt this shorthand is easier comparison to others. Okay, and you can reach 80 WPM and 100 WPM. So you can learn, and from you can see here, today I will talk about letters, alphabets, A, B, C, D, how to draw. So alphabet A, you can see alphabet A formed from, and this is third row, T-line outline. So A alphabet written as one stroke without lifting the pen. Okay, A alphabet written in one stroke without lifting the pen, like this. Okay, लाइन के ऊपर हमें ड्रॉ करना है. इसके कुछ रूल्स हैं. ओके, सो नेक्स्ट ए इंडिकेटर को हम इस डायरेक्शन में ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. सॉरी, नॉट ऑन लाइन, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, एंड इस डायरेक्शन में ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है हमें. अल्फ़ाबेट बी देखेंगे. अल्फ़ाबेट बी, you can draw like this. Okay, a curved version of a small b, a curved version of a small b. Okay, then C alphabet, simply you can draw like this as it is C, but on line के ऊपर हमें ड्रॉ करना है. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अल्फ़ाबेट D. You can draw D on line, simply straight line, like this. Okay, on line, not below line, on line, like this. Okay, D. नेक्स्ट ई लेटर देखेंगे. You can draw E like this on line. Okay, on line. Here you can see that E का हमने ये वाला पोर्शन लिया है. ओके, नेक्स्ट ई इंडिकेटर हम कैसे ड्रॉ करेंगे. सिंपली स्मॉल स्ट्रेट लाइन
and either this way. You can draw like this or this. You can draw like this. Fine. Used only for easier joining. Whichever you can draw easy way, draw in easy way, okay. Alphabet F. Now alphabet F, simply हम F ऐसे लिखते हैं, ठीक है. And when we will draw in T-line shorthand, then we will draw like this, simply like this, or on line or below line, okay. Next, G. How to draw G? Simply we have written G like this, so we'll draw this way, okay. Used for soft sound D, G, E, when D is silent as in edge. अगर आपको समझ में ना आया हो, अभी जस्ट मैंने क्या कहा, तो उसे भूल जाएं. अभी के लिए कंसंट्रेट करें हमने जी ड्रॉ कैसे किया, ठीक है. लाइक दिस. H, सिंपली H, वन स्ट्रेट लाइन, ओके. लाइन से हमारा टच होना चाहिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. जो हर आउटलाइन पे मैं कह रही हूँ, कौन से आउटलाइंस लाइन से टच रहेंगे और कौन से नहीं, ठीक है. अभी तक तो सारे आउटलाइंस लाइन से टच होकर ड्रॉ किए जा रहे हैं. फिर आई देखेंगे, हाउ टू ड्रॉ आई. सो लाइक दिस, ओके. नेक्स्ट, आई इंडिकेटर देखेंगे. अब आई इंडिकेटर, you can draw like this way or this way, same direction, but ड्रॉ करने का वे हमारा अलग अलग है. either upward to downward or downward to upward, okay. अल्फ़ाबेट जे कैसे ड्रॉ किया हमने, like this, like this, little bit curve comparison to G, okay. And we will not add this point, जैसा कि इस जगह पर ड्रॉ किया हुआ है, लिखा हुआ है. simply we will draw like this, and okay. For K, we'll see. For K, we'll draw like this. L हमारा ऐसे लिखा हुआ है, तो हम L को इस डायरेक्शन में ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है. यू कैन सी, इस डायरेक्शन में ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं और नीचे से ऊपर की ओर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है. ये लाइन से नीचे नहीं जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है. अब जब आगे लिखोगे वर्ड्स, तो आपको पता चलेगा इस दोनों तरह के एल को हम किस तरह से यूज़ करेंगे. इस डायरेक्शन में भी हमें लिखने में
लिखने को मिलेगा और इस डायरेक्शन में भी हमें लिखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा कर्व रहेगा। एज इट इज़ मैंने जैसे ड्रॉ कर रखा है पहले से, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ये जो मैं पेन से ड्रॉ कर रही हूँ अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रहा, जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, आउटलाइन पे। बस डायरेक्शन पे फोकस करेंगे, जो मैं डायरेक्शन बता रही हूँ ड्रॉ करके। फिर एम देखेंगे, एम सिंपली इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लाइन से टच्ड रहेगा। लाइन से टच रहना बहुत ज़रूरी है, और जो लाइन से टच नहीं होगा उसका मीनिंग कुछ और ही आ जाएगा। इसलिए जिसे लाइन से टच करके ड्रॉ करना है उसे टच करके ही ड्रॉ करेंगे लाइन से, और जिसे नहीं करना वो आगे जाकर पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट एन सिंपली लाइक दिस ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, यू कैन ड्रॉ एन लाइक दिस इन बिटवीन लाइन से आप हट कर भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, ओ कैसे ड्रॉ करेंगे? सिंपली ओ को ओ की तरह ही लिख देंगे। ठीक है, देन ओ इंडिकेटर कैसे यूज़ करेंगे? ओ इंडिकेटर हाफ ओ लिखेंगे, ठीक है, अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ बट जो पहले से ड्रॉ है इस पर फोकस करेंगे। हाफ ओ लिखेंगे। ठीक है, हाफ ओ लिखेंगे। फाइन, उसके बाद नेक्स्ट पी देखेंगे। पी कैसे ड्रॉ किया हमने? लाइन को क्रॉस करते हुए हमने पी को ड्रॉ किया है। ठीक है, एच हमने कैसे ड्रॉ किया था? एच को लाइन के ऊपर ड्रॉ किया था। ठीक है, पी हम कैसे ड्रॉ करेंगे? पी के आउटलाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे? हम इसे लाइन से क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये पी हो जाएगा। ओके, और जिस डायरेक्शन में मैंने ड्रॉ किया लाइक दिस ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। फाइन, नेक्स्ट क्यू को कैसे ड्रॉ करेंगे? लाइक दिस, लाइन से क्रॉस करते हुए, कर्व करते हुए, बिल्कुल इस तरह से सेम टू सेम। ठीक है, देन आर कैसे ड्रॉ करेंगे? सिंपली रिटर्न अपवर्ड की तरफ। ठीक है, अपवर्ड की तरफ थोड़ा सा टिल्ट रहेगा हमारा आर। ओके, दिस इज आर। फिर एस कैसे ड्रॉ करेंगे? एस सिंपली स्मॉल सर्कल कंपैरिजन टू टी लाइन ओ। कंपैरिजन टू टी लाइन ओ हम स्मॉल सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, स्मॉल सर्कल। ठीक है, आप देख सकते हो पहले से जो ड्रॉ किया हुआ है। फाइन, उसके बाद टी देखेंगे। टी को हम कैसे ड्रॉ करेंगे? सिंपली लाइन से हटकर, जिस जगह पर ड्रॉ किया हुआ है टी, लाइन से हटकर। ठीक है, सिंपली स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। ठीक है, देन नेक्स्ट यू देखेंगे। यू कैसे ड्रॉ किया हमने? सिंपली लाइक दिस। ओके, कीप नैरो टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम
ओ इंडिकेटर। ओ इंडिकेटर से हम डिफ्रेंशिएट कर सके, इसलिए हमें थोड़ा सा ओपन करके नहीं बल्कि इस तरह से नैरो रखना है, ठीक है, तब हमारा ये यू होगा। ओके, यू इंडिकेटर कैसे ड्रॉ करेंगे हम? सिंपली सेम जैसे हमने ई इंडिकेटर को ड्रॉ किया था, ठीक है, अगर आपको याद हो तो लाइक दिस। उसके बाद वी देखेंगे, वी सिंपली वी की तरह ही ड्रॉ कर देंगे। देन डब्ल्यू, जिस तरह से हमने एम को ऐसे ड्रॉ किया था, ठीक है, वैसे ही डब्ल्यू को इस तरह से ड्रॉ करेंगे, सॉरी इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो आप ऑलरेडी देख रहे हैं, ये वाला आउटलाइन, ये वाली आउटलाइन देख रहे हैं आप, ठीक है। देन नेक्स्ट एक्स कैसे ड्रॉ करेंगे? सेम एज इट इज़ एक्स की तरह, ठीक है, एक्स की तरह लाइक दिस। ओके, लाइन से क्रॉस नहीं होगा, एक्स की तरह, ठीक है। नेक्स्ट वाई एंड जेड देखेंगे। फिर वाई को कैसे ड्रॉ करेंगे हम? सिंपली जैसे हम नॉर्मल लेटर यू लिखते हैं, एज इट इज़ हम वाई को लिख देंगे, तो हमारा ये वाई हो जाएगा। यू तो हमने सीखा, यू कैसे सीखा हमने ड्रॉ करना, लाइक दिस। ओके, बट हम वाई को ड्रॉ इस तरह से करेंगे जैसे यू कैसे लिखते हैं, यू इस तरह से लिखते हैं ना, यू इस तरह से ही हम वाई को लिखेंगे, वाई के लेटर को लिखेंगे, ठीक है, लाइक दिस, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट जेड को कैसे लिखना है? जेड को सिंपली जब हम कॉमा देते हैं ना, कॉमा से थोड़ा सा डिफरेंस ये रहेगा कि हमारा सर्कल में स्पेस रहेगा एंड लाइक दिस, ठीक है, एग्जैक्टली जिस तरह से ड्रॉ किया हुआ है वैसा ही। पेन से अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रहा, बट सर्कल में स्पेस रहेगा हमारा एंड लाइक दिस, ठीक है। तो होप सो आप सीख गए होंगे कैसे ड्रॉ किया जाता है टी लाइन शॉर्ट हैंड में अल्फ़ाबेट्स को। इस तरह से और भी आप अल्फ़ाबेट सीख जाओगे। देन आफ्टर दैट यू विल लर्न हाउ टू जॉइन लेटर्स। देख सकते हो यहाँ इस जगह पे मैंने लिख रखा है। फर्स्ट आप ABCD सीखोगे, ठीक है, देन आप लेटर्स जॉइन करना सीखोगे। लेटर्स जॉइन करना सीखोगे तो आप वर्ड बनाना सीखोगे, ठीक है, लाइक दिस। लेटर्स जॉइन करना सीखोगे। BT हमारा इस तरह से बनता है, B एंड T। अगर आपको याद हो, B हमने ऐसे ड्रॉ किया था और अलग से T हमने ऐसे ड्रॉ किया था। तो BT को जब हम जॉइंट करेंगे तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो जॉइंट लेटर्स भी सीखना है। फिर CM सभी के रूल्स हैं। देन फिर हम जॉइंट लेटर्स सीखने के बाद फिर वर्ड्स सीखते हैं, सिंपल इजी से वर्ड्स लाइक कैन, शॉप, वॉक, सिंपल इजी से वर्ड्स, 3 लेटर्स के, 4 लेटर्स के, 5 लेटर्स के, लाइक दिस, ठीक है। फिर स्लोली हमारे वोकैब्स बनते जाते हैं, आउटलाइंस के वर्ड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड लिस्ट हमारी प्रिपेयर होती जाती है। तो फिर हम सेंटेंस सीखते हैं, ठीक है। फिर हाउ टू ड्रॉ वॉवेल्स। जो भी मैंने इंडिकेटर्स आप लोगों को बताए हैं वो सारे वॉवेल्स के बताए हैं, ठीक है, AEIOU के।
तो वॉवेल्स कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीखेंगे, फिर वॉवेल से रिलेटेड वर्ड्स को सीखेंगे, हाउ टू ड्रॉ वर्ड्स फ्रॉम वॉवेल्स, ठीक है। देन उसके बाद आप सेंटेंस बनाना सीख जाओगे, कंप्लीट रूल सीख जाओगे, हाउ टू ड्रॉ ईच एंड एवरी वर्ड्स। जब फिर आप एक कंप्लीट कोर्स कंप्लीट कर लोगे, फुल कोर्स जो टी लाइन्स के होते हैं, देन आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो अपनी, जिससे कि आपकी स्पीड इंक्रीज़ होती चली जाएंगी, ठीक है। तो इट विल टेक टाइम, इट विल टेक फ्यू मंथ्स टू कंप्लीट योर कोर्स टी लाइन, then after that you will increase your speed step by step। तो होप सो आप लोग समझ गए होंगे जो भी मैंने कहा, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।